आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंटल पोल्यूशन। माई सेल्फ डॉक्टर शुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पोल्यूशन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि कितनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आजकल हो रही है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ इंटेंस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल एमिशंस है, पुअर सैनिटेशन है, देर आर सो मेनी कॉजेस, insufficient waste management, polluted water supplies, and exposures to indoor air pollution from biomass fuels, etc. It all affects the humans. In the 2001 summit explained about the fact, recently modern pollutants have emerged which are associated with traffic congestion and the use of modern chemicals in the home, in food, for water treatment and for pest control. कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ है? देर आर सो मेनी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़. These are industrialized agriculture, water depletion, water pollution, air pollution, climate change, biodiversity loss, invasive species, human population growth. सबसे बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन है. And these problems we face every day. Problem of waste disposal है, impoverishment of biological diversity है, the world food problem, the depletion of fresh water, pollution in the world ocean है, land pollution, water pollution, air pollution, changes in the earth's climate and destruction in the ozone layer. These are all the global environmental problems. ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में एयर पोल्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, वाटर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट्स. जो करंट प्रॉब्लम्स है उनमें मेन है पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन. पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की है. क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओशन में जो है एसिडिफिकेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन, अर्बन स्प्रॉल, पब्लिक हेल्थ इश्यूज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास इकट्ठी हो रही है. देयर इज़ अ कैओस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. एयर पोल्यूशन हमारा जो पार्ट है सिलेबस का, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, soil pollution, noise pollution, there are so many types of pollutions and we will have to find out some remedy or what are the causes, how we can control, what are the control measures to be observed, like that. Air pollution has emerged as growing global issue among environmentalists and researchers, especially in developed countries. Since the decade of 1960 to 2009, it was observed by Can 2009. It affects human and animal lives, natural ecosystems and the man-made environment. The main pollutants found in the air people breathe include particulate matter, PAH, lead, ground level ozone, heavy metals, sulfur dioxide, benzene, carbon monoxide and nitrogen dioxide. It is also responsible for climate change due to enhanced greenhouse effect, acid rain and the depletion of the ozone layer. Mishra stated that fast growth in urban population, increasing industrialization and rising demands for energy and motor vehicles are the deteriorating air pollution levels. अब एयर पोल्यूशन के लिए प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस 2005 के बारे में बताया गया है कि शॉर्टर लाइफ स्पैन हो गया है सिटी इनहेबिटेंट्स का. ग्लोबल इशू अमंग एनवायरमेंटलिस्ट एंड रिसर्चर्स स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज सिंस द डिकेड ऑफ 1960 to 2009. इट अफेक्ट्स all the human lives and this was all decided and observed and told by Progressive Insurance 2005. Now indoor air pollution. Indoor air pollution is defined as the amount of chemical, biological and physical contaminants in the air inside a building. Indoor air pollution is more dangerous as compared to outdoor air pollution. एक कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर हम रहते हैं तो अंदर ही अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है इंडोर पोल्यूशन, वो ज़्यादा खतरनाक है कहीं आउटडोर एयर पोल्यूशन से.
सम ऑफ इंडोर एयर पोल्यूटेंट सोर्सेस इन हाउसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग मटेरियल्स है, प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स है, सेवरल पर्सनल केयर और हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, पेंटिंग कलर्स, सॉल्वेंट्स, हीटिंग और कुकिंग अप्लाइंसेस, स्टोव है, वुड है, गैस बर्निंग फायर प्लेसेस, गैस हीटर्स एट्सेट्रा, टोबैको स्मोक, ऑफिस मशीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डेली एक्टिविटीज़। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इनसे पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन होता है। आउटडोर पोल्यूशन, द नेचुरल सोर्सेस इंक्लूड फर्नेसेस एंड वेस्ट डिस्पोजल्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल फायर्स। Air pollution occurs both outdoor and indoor and is caused by human activities and natural mechanisms. Outdoor air pollution is described as the discharge of numerous air pollutants into the atmosphere in concentrations that they threaten the health of living organisms or upset the function of the environment as a system, leading to human health damages in various ways. See here the chimney throwing the air pollution, smoke. There are many causes, just I have told you. See the poor environmental ruling, कोई रूल्स जो है वो हम फॉलो नहीं करते हैं। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, जैम्ड रोड्स, आए दिन रोड्स पर जैम लग जाता है। एज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो इंक्रीज पोल्यूशन लेवल। ये कई सारे फैक्टर्स है। It is established that air pollution is caused of ill health and death by natural and man-made sources. Major man-made sources of ambient air pollution include tobacco smoke, combustion of solid fuels for cooking, heating, home cleaning agents, insecticides, industries, automobiles, power generation, poor environmental regulation, less efficient technology of production, congested roads, and age and poor maintenance of cars and other automobiles. मेन कॉजेस है ये जो हमारे डेली लाइफ में सब काम आने वाली चीज़ें हैं और इनसे निश्चित रूप से पोल्यूशन होता ही है। अब हम इसको कैसे कम कर सकते हैं या क्या कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें देखना होगा। द नेचुरल सोर्सेस इंक्लूड फर्नेसेस एट्सेट्रा एंड दे अपसेट द फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एज ए सिस्टम लीडिंग टू ह्यूमन हेल्थ डैमेजिंग वेरियस वेज। Air pollution causes many health issues. CO2 is a good transmitter of sunlight, but it also partially restricts infrared radiation going back from the earth into space, which produces the greenhouse effect that prevents a drastic cooling of the earth during the night. Increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere strengthens this effect and is expected to result in a warming of earth's surface. Air pollution has harmful impact on plant life. Sulfur dioxide is considered as most harmful pollutant. सबसे ज़्यादा खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट है। World is facing severe problem of environmental degradation due to rapid increase in population and economic development that weakens the environmental resource. आजकल environmental auditing भी होती है और उसके लिए ऑडिटिंग के लिए पोल्यूशन का इन्फोग्राफिक चार्ट यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस प्रकार से कितने लेवल पर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, टॉक्सिक गैसेस से, न्यूक्लियर से, व्हीकुलर से एंड अदर। सो 41%, 15%, 32% लाइक दैट। इन केस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, गैसेस, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर। वाटर पोल्यूशन यहाँ पर गार्बेज से होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण होता है। इस प्रकार से चार्ट में पूरा बताया गया है। एनवायरमेंट पोल्यूशन इज़ वर्ल्ड वाइड इशू एंड इट हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। फेरिडोन एट ऑल 2007 में इन्होंने बताया यूनिवर्सल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एसिड डिपोजिशन as well as water pollution and waste management is deliberated as global public health problem. और कई सारे सोशल इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिस्टम्स है, लाइफस्टाइल हैबिट्स है। दे प्रमोट द पोल्यूशन एंड हेल्थ प्रमोशन एंड रेनफोर्सिंग एनवायरमेंटल सिस्टम्स टू रिपेल एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन के कारण भी
होता है। कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनका प्लांट्स पर प्रभाव हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, इंटरवेनल क्लोरोटिक ब्लीचिंग ऑफ लीव्स ऑकर्स। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण माइल्ड भी हो सकती है, सीवियर नेक्रोसिस भी होता है और स्केलेटनाइज लीव्स हो जाते हैं। ओजोन माइल्ड है तो फ्लैक्स ऑन अपर सरफेसेस, प्रीमेच्योर एजिंग एंड सप्रेस ग्रोथ, और सीवियर है तो कोलैप्स ऑफ लीफ, नेक्रोसिस एंड ब्लीचिंग। सो फ्लोराइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इथेलिन, pan, etc., they are all peroxyacetyl nitrate, that is bronzing of lower leaf surface, upper surface normal, and suppressed growth, and young leaves more susceptible. Such type of effects they are observed due to sulfur dioxide and other pollutants. Water pollution, air pollution monitoring is very necessary, and they control pollution, and it can be controlled by different decisions to manage overall quality of environment. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? सिंपल रिएक्शन क्या हो रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है, और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एंड अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, इनके बारे में इस फ्लोशीट चार्ट में बताया गया है कि किस तरह से फ्री रेडिकल्स या हायर मोलिकुलर वेट के हेवी मेटल्स है उनसे पोल्यूशन फैलता है, और सोलर एनर्जी और नेचुरल ऑक्सीजन, वाटर, इन सब को डिटीरियोरेट करता है। वाटर पोल्यूशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एयर पोल्यूशन। दिस वाटर पोल्यूशन एडवर्सली इम्पैक्ट्स द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल्स एंड वेजिटेशन। फिजिकल केमिस्ट्री और सेंसरी चेंजेस भी हो जाते हैं, और मेनी ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस आर टॉक्सिक और दे आर इवन कार्सिनोजेनिक। एग्रीकल्चर, हाउसहोल्ड, सभी को वाटर पोल्यूशन अफेक्ट करता है। यू कैन सी हाउ मच गार्बेज एंड प्लास्टिक इज seen here on the coast area. Pathogens can obviously produce waterborne diseases. Furthermore, water pollution affects ocean, lake, river and drinking water. कोई भी ऐसा मेजर कॉज हो सकता है जिससे कि इवन इट मे बी फैटल और ह्यूमन डेथ में ऑकर। तो इस प्रकार से पेपर पल्प इंडस्ट्री है, दे कंज्यूम वाटर एंड डिस्चार्ज लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं 0.6 से 1.7 मिलीग्राम पर लीटर में होना चाहिए, लेकिन ये कहीं अधिक होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन and water pollution, and how we can overcome these problems. Save the earth. Thank you. You can ask if you have any query, and you can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.